Basically, I started my college life in 2009, and just after 1 year I realized that this curriculum which we are studying, the regular curriculum which we are having, it is not actually answering the eagerness and this inquisitiveness किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब हमें होता है. आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एक करिकुलम में रहना चाहते हैं, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं. एक थॉट आप एक बार सोचिए इस चीज़ को कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसे यूनाइटेड नेशन ने लिस्ट कर दिया अपने वेबसाइट पे. कैसा लगेगा? एक फील आएगा ना, मम्मी पापा को बताना सभी को. आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, यू क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट and government of India, Supreme Court wants to fund that project. So this is the part of my journey. But is it actually possible to just jump on that level in the first step? It is actually a journey. और उस जर्नी को जब आप करते हो तो आपसे कोई सवाल अगर पूछेगा, if anyone asks you any question, you will be fluent enough to answer them. You will be fluent enough to inspire them, and maybe scientific questions जो होंगे आप फटाफट उसे आंसर कर पाओगे. करेक्ट? तो जर्नी ऑफ इनोवेशन होती क्या है? What is innovation? So basically, so categories of something new. दुनिया में कोई भी चीज़ अगर नई आती है, कोई ब्रांड न्यू चीज़ आती है, तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है. पहला, डिस्कवरी. I discovered India. One person said maybe 100 years ago, Vasco da Gama and Columbus, right? I discovered something. The thing which is already there on the earth, you just discovered it. Black hole is already there in this universe. You just discovered it through the course of your action, right? Second is invention. Invention is just above the discovery. What is invention? You are into a process of creating something new, like light bulb, created by Edison. And he took around 1,000 chance, 1,000 practice, 1,000 you can say ways of not creating a bulb, and then maybe after 1,000 step he got one bulb, right? So that is invention, creating something new. Discovery is, it's already there in the universe, you just found, right? And third will be innovation. What is innovation? Innovation is basically you are taking the things which are already there and molding it into something useful to you. That's it. Innovation is there in your house also. आपकी मम्मी ना किचन में कभी आप ध्यान से जाना, आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी मम्मी ने सिर्फ अपने आराम के लिए बना रखी होंगी, राइट? या फिर आप कहीं पे किसी कंपनी में जाओगे, किसी ब्रांच में से एडमिशन डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा. दैट इज ऑल्सो इनोवेशन. व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज एक्चुअली आंसरिंग द प्रॉब्लम विच इज देयर एंड यूजिंग द रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल. आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक के नॉलेज को यूज़ करके यू विल आंसर योर thing, and that will be called as a innovation. Can it be registered on your name? Yes, it can be registered on your name. The product which I have developed, its name is पर्याय यंत्र. सर ने अभी थोड़ी देर बताया कि थोड़ी देर पहले बताया और मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन में लिस्ट हुआ है. Let me tell you what is that product is. We all know what is air pollution, and just 3 or 4 days ago I developed and maybe discovered a problem in my body. It's breathlessness. रात को 2:30 बजे 2:30 it was like choking. I waked up, I just drank a small cup of hot water, and then I realized that it is actually not a myth. Air pollution is affecting your lungs. You will never going to discover what is the condition of your lung right now, but it is actually happening. We started the journey of making this project Parya Yantra in the year of 2015, when it is not affecting me, but is actually affected someone from whom I got affected. What was that? It was very personal. My sister,
my sister was pregnant at that time, somewhere around 2012 or 2013, and she delivered the baby in the year of 2014. Then I just got this thought that when I was born in the year of 1991, and till the age of, let's say, 19 years, right now I'm 31, so till the age of 19 years I breathed clean air, right? मगर after 19 pollution होने लग गया, उसके बाद I started breathing some dirty air. आपका शायद कम होगा, आपके लाइफ में आपने शायद जो क्लीन एयर ब्रीथ की होगी, हो सकता है 15 साल तक की हो, उसके बाद आपने भी डर्टी हवा लेनी स्टार्ट कर दी. मगर जब मेरा भांजा पैदा हुआ तो मेरे दिमाग में बस ये स्ट्राइक किया कि ये जो पहला ब्रेथ लेगा वो डर्टी एयर का लेगा, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो आया ही अभी है. दैट स्ट्राइक्ड मी, एंड देन आई स्टार्टेड टू ना कि कुछ तो किया जाए, चाहे सरकार के सामने जाके ऐसे प्रोटेस्ट किया जाए, कुछ भी किया जाए. बट येस, आई हैड दिस टिंकरिंग काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि लेट्स क्रिएट समथिंग विद द मैकेनिकल नॉलेज. Yes, I had at that time Dr. Gill, who had this idea of creating an air filtration device. So I will now take you to the journey of creating a product. I was just passed out, and I started working on the project in the year of 2015. So what was that project? It was actually an air filtration device. It was actually an air filtration device. The device which you see right now in your home, like Dyson is selling the device, air purifiers, which you connect into the switchboard, and then when you switch on this air purifier, there is a fan which is pushing the still air of the room onto the air filter, right? इस रूम में जो हवा है उसको पुश कर रहा है कपड़े पे, और उस कपड़े की जो पोर साइज है उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर होते चला जा रहा है. हमने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसको हम शहरों में लगाना स्टार्ट कर देते हैं. और उस समय ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में था नहीं, तो हमने सोचा यस वी हैव क्रिएटेड समथिंग, बट वो कोई ऐसा भी इनोवेशन नहीं था कि जिसको हम अपने नाम पे रजिस्टर करा पाएँ, जिसका मतलब होता है पैटेंट करा पाएँ. यू नो पैटेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसका मतलब होता है कि आपने एक आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया. जैसे बल्ब किसका इन्वेंशन था, किसका पैटेंट था पहला? एडिसन का. उसी तरीके से ब्लूटूथ किसी का था, प्रोजेक्टर किसी का था. तो वो प्रोडक्ट इनमें हम लोग पैटेंट नहीं करा सकते थे, मगर हम लोग को था कि यस वी हैव फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी कैन कीप ऑल दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस इन अ ह्यूज इन अ साइज. कि अभी जैसे आप लोग देखते हो रूम में आपका छोटा सा फैन लगा होता है, वो छोटे कमरे के लिए होता है, मगर शहर को साफ करना है तो हम बड़े बड़े मोटर्स लेंगे, जैसे कि 2 HP का मोटर ले लिया और हमने उसमें एयर को पुश करना स्टार्ट कर दिया. देन वी कैलकुलेटेड कि इफ़ वी हैव टू क्लीन द एयर ऑफ अ सिटी लाइक दिल्ली, how many number of these arrangement will be required? It will be somewhere around lakhs, and to run those systems we will require electricity also, and the electricity in the country like India is generated through coal, and 70% of the electricity in India is coal. So it's like we are just transferring air pollution from Delhi to somewhere where electricity is getting generated, because then for running this air purification system you will require electricity load will be onto the generators or maybe the generation houses, and coal will be burned more. So ultimately you are not solving the pollution, you are just transferring the pollution. तो हमें चलती हुई हवा चाहिए थी, और ये बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग सा एक इंसिडेंट हुआ डॉक्टर गिल के साथ कि जैसे नट बोल्ट होता है ना, आप नट को पकड़ लो, यू रोटेट द बोल्ट, इट विल बी टाइटेंड. आप बोल्ट को पकड़ लो, नट को रोटेट करो, इट विल बी टाइटेंड. फैन का भी सेम कंसेप्ट होता है, मोटर का भी सेम कंसेप्ट. आप शाफ्ट को पकड़ लो, पूरी बॉडी घूमने लग जाती है, राइट? तो उसी तरीके का हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ. हमें चलती हुई हवा चाहिए थी, ठीक है? तो हमने सोचा कि फ़ैन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि फ़ैन हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो हमें चलती हुई हवा मिलेगी कैसे? वन डे व्हाट हैपेंड, डॉक्टर गिल वाज कमिंग फ्रॉम हिज होम फ्रॉम सरिता विहार. ही वाज इन दिस थॉट प्रोसेस. जब भी आप भी कोई प्रोजेक्ट में लगोगे ना, तो आप एक जोन में चले जाओगे. वो जोन से जब आप कुछ टाइम के बाद बाहर निकलोगे ना, तो यू विल रिमेंबर दैट जोन कि यार वो बड़ा अच्छा जोन था, उसमें मैं बड़ी तेज़ी से सीख रहा था कुछ. मैं खुद जाके नेट पे सर्च करता था, मैं किताबें बड़ी स्पेसिफिक तरीके से उठाता था, और उतना ही सीखता था जितना मेरे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था, और वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है.
और वो आपको एक्चुअली में हमेशा याद रहेगी। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप किसी भी चीज़ पे काम करोगे, मैं नहीं कहता कि किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, आप हो सकता है कि मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़, मार्केटिंग रिलेटेड चीज़, मेडिकल रिलेटेड चीज़, आपकी बॉडी में कुछ होगा तो आपको वो दवाई का नाम याद हो जाएगा ना। उसी तरीके से पढ़ाई जो है वो एक करिकुलम है कि आपको एक जर्नी के बाद एक कैपेबल बंदा बना के खड़ा कर दिया जाए, ताकि आप उसके बाद इनोवेशन कर सको, ताकि आपके पास एक छोटा सा वो प्रोसेस आपके दिमाग में डेवलप हो जाए। तो गिल सर ने सडनली, बस ही वॉज ड्राइविंग हिज कार, ही ओपन द विंडो, ही एक्सपीरियंस्ड द ब्लास्ट ऑफ एयर। व्हाई? बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग। खिड़की खोला, हवा आई उनके चेहरे पे, बस उनको चलती हुई हवा मिल गई। उन्होंने कॉलेज में आके क्या किया, उन्होंने एक कपड़ा लिया, नॉर्मल सा कपड़ा, ये एक बड़ी रॉ सी जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कपड़ा लिया और उन्होंने जाके अपने गाड़ी के ऊपर लगा दिया और उन्होंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। वो 3-4 दिन गए, ही केम आफ्टर 3 days एंड सेड, अमित ये देख डस्ट इकट्ठा हो गया। ये ना एक इन्वेंशन जब होता है ना अचानक से कि यू फाउंड समथिंग, इट वाज अ जॉयफुल टाइम कि वी हैव नॉट यूज्ड एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर एंड वी हैव कैप्चर्ड द डस्ट। हाउ? वी यूज द मोशन ऑफ व्हीकल। When you are inside a bus, you put your hand outside, you will experience a blast of air which is proportional to the speed of vehicle, right? 40 पे चल रही है तो 40 की हवा लगेगी, 60 पे चल रही है तो 60 की लगेगी। बस हमने यही करना स्टार्ट किया, हमने बस के ऊपर फिल्ट्रेशन डिवाइस लगा दिया और उस बस को पूरे शहर में चलाया। और उसके बाद जब हमने डस्ट इकट्ठा की, डेटा क्या कहा हम लोगों का, 90+% of the particle was smaller than 10 microns. What is 10 microns? It is actually the dangerous thing which is going inside your body and body is unable to filter it out. Like in the nose you have hairs, here you have a vortex kind of body structure, then you have phlegm and mucus, and then you have lungs which is using that air to run your body. बॉडी के सारे स्ट्रक्चर को 10 और 10 से छोटे जो पार्टिकल्स है वो नहीं फिल्टर कर पाता। हमारे 90+ पार्टिकल स्मॉलर देन 10 माइक्रोन। और उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया, 3 साल लगे। इट वाज नॉट लाइक कि हम लोग गए, ओह माय गॉड यू केम अप विद वैसे नोबेल प्राइज ऑफ ऐसा आइडिया कुछ लेके आ गए हो। नो वन रिस्पॉन्डेड। इट टुक 3 years। हम लोगों ने 2016 से अप्लाई करना स्टार्ट किया। 2016, 17 और 18 में वी गॉट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड वी ऑलवेज चेरिश दैट मोमेंट कि हमने जो जर्नी की, जिसमें हमने वेल्डिंग से एक वेल्डिंग कटिंग है ना, हाथ भी कट जाते हैं। आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं, जलता है। अगर आपका पैशन नहीं होगा ना, आप सोल्डरिंग आयरन फेंक दोगे, मैं नहीं कर रहा काम, मैं जा रहा हूँ, आई हैव सम फ्रेंड्स टू हैव हैंग आउट विथ, आप वहाँ चले जाओगे। मगर अगर आपका होगा तो ज़रा सा हम लोग मैकेनिकल में हाथ कट जाते हैं हमारे। हम जब वेल्डिंग करते हैं तो जलता है, वो निशान कम से कम, वो छोटा सा भी वेल्डिंग करें तो 3-4 दिन तो निशान रहेगा। वो पूरी जर्नी हमने 3 साल तक की, एक पेशेंस रखा एंड देन वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। Just after that, United Nations listed this project. Just after that, Pennsylvania University, which is under top 10 university of the world, they did research on the researchers. उन्होंने हम पे रिसर्च किया, उसके लिए इंटरव्यूज़ हुए हमारे। और ये स्टोरी आपको इस लैब में बहुत लोगों की मिलेगी। कई ऐसे लोग रहे इसी लैब में। रूपम शर्मा, you see his journey. He used to sit there all day, all night. पता नहीं उसे नींद आती थी कि नहीं, करता रहता था अपना काम। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने शायद कॉलेज फीस से ज़्यादा तो प्राइज़ मनी कमा लिया। इतना उन्होंने विनिंग्स लिया, इतना अक्लॉड्स मिले उन्हें। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि आप इनोवेशन का जर्नी इसलिए स्टार्ट कीजिए क्योंकि उससे आपको पैसा मिलेगा। एक सेटिस्फैक्शन होता है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर दिस वर्ल्ड। आई एम अमित कुमार सिंह, आई एम वेरी प्राउड कि यस आई हैव रजिस्टर्ड वन थिंग ऑन माई नेम फॉर द वर्ल्ड। देयर कैन बी सम न्यू आइडिया इन योर माइंड ऑल्सो, स्टार्ट दैट जर्नी। It can be from any branch. I have done work in mechanical engineering. I have created something with Vikas in electronics. I have created something in biotechnology also. It is just a thought process of creating something new. When the problem is there, you want to get the answer.
अब वो आंसर कहीं से मिले, एंड दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. इफ यू आर पैशनेट इनफ टू फाइंड दैट आंसर, you will get the accolades. So this is basically a journey of innovation. कि आपके घर में आपको प्रॉब्लम मिल जाए कि मम्मी को कोई दिक्कत हो रही है, हो सकता है पापा को ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत हो रही है, उसके बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप नॉलेज को गैदर करें, उसके बाद डिज़ाइनिंग करें. नॉलेज को गैदर करना ज़रूरी है. हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम आपको मिला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के नॉलेज से ना सॉल्व हो पाए, वो मैकेनिकल से हो. उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग. आप डिज़ाइन फेज़ में चले जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाया जाए. उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर आप उसको असली में बनाते हो. मतलब आप सबसे पहले उसको अपनी दिमाग में बना रहे हो. एंड व्हेन यू आर इनटू द जर्नी ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप दिमाग में उस प्रोजेक्ट को बना रहे होगे ना, और सॉल्यूशंस को अपने दिमाग में या फिर लोगों के साथ अपने दिमाग में मोनोलॉग कर रहे होगे, योर ब्रेन विल स्टार्ट ग्रोइंग. यू विल मैन्युफैक्चर एंड मेक द फर्स्ट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि ये जो मैंने सोचा था वो रियलिटी में ऐसा दिखेगा और उसका आंसर्स ऐसा आएगा, वो इस तरीके से काम करेगा. नेक्स्ट एक और बात, ट्रायल्स एंड करेक्शन. पहली बार बनाओगे तो हो सकता है कि वो सही ना बने. You need to try that out. Then making that product market ready. मार्केट में बेचना भी चाहोगे, पैसे भी कमाना चाहोगे, and people are continuously doing it. You take any businessman who are doing, जैसे कि Bill Gates, what he did, software, same journey. He thought to answer the problem through a software. He gained the knowledge, he gained the people. He collected people with him. उसके बाद उसने प्रोजेक्ट बनाया, ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद मार्केट में लेके गया, और उसके बाद ही स्टार्टेड द जर्नी ऑफ फॉर्च्यून. So this is basically a journey of innovation. Get into it, and then maybe you will have your own experience to develop something new. Thank you.